سے رابطہ کیا. ہمیں وہ جرمن قصاب ہے. ڈاکٹر کا ثبوت چاہیے. جس طرح سے لطیف احمدی تو صاحب ہیں ہی وہ جھوٹے بڈھا، ہیں، وہ اس یہ بڈھے زندیق نے ہیں، ان کے خلیفے جھوٹے ہیں. اس بڈھے نے یہ کہا تھا احمد دیداس کا جو عقیدہ ہے وہ سیم مرزا جی کا ہے، مسلمانوں کا نہیں ہے. کدھر ہے؟ کم از کم عسکری 5 بھائی 6 قسطوار. آپ کی بات کرنے کے یا سننے کی وجہ سے مجھے کان کے قریب کرنا پڑتا ہے تو ایک دم سے اکبر بھائی بولتے ہیں، ان کی آواز اونچی ہے. ابھی آپ مائک ٹھیک کریں یا قریب آ جائیں مائک کے. ڈاک ماسٹر 1 منٹ چپ کرو گے تو گل سمجھ لگ جائے گی. 1 منٹ ذرا چپ رہو. ایمبولینس ڈاک ماسٹر جی میرے جواب نہیں دیں گے آپ؟ آپ کی آواز بہت کم ہے نا، میں کیا یہ جواب کہتے ہیں کہ پیر صاحب ایمبولینس بنے ہیں میرے لیے، آپ ایمبولینس بن رہے ہیں علیم مرزائی کے لیے. اچھا ماسٹر جی میں تو اس وقت میری تک آواز بولا صاف نہیں نہیں ہے؟ جب تک آپ دونوں کی باتیں ہو رہی تھی. وہ ابھی ناصر جی جھوٹا میری آدمی کہہ آواز کے آ گیا رہی ہے ہے یا کہ نہیں آ ایک رہی؟ احمدی ڈاکٹر نے رابطہ کیا جرمن ڈاکٹر سے. ہمیں احمدی ڈاکٹر کا بیان نہیں چاہیے، ہمیں جرمن ڈاکٹر کا بیان چاہیے. اور میں یہ ثابت کرتا ہوں کہ جمبا صاحب نے اپنی سالی کے بیٹے کے لیے یہ پیشن گوئی کی تھی کہ لڑکا ہوگا، اور وہ یہی لڑکا ہے باتیں وہ مبشر صاحب کا بیٹا ہے، یہ کسی اور کا نام لے رہا ہے. یہی باتیں اور آپ جمبا سب صاحب نے یہ دیکھنے کے پیشن بعد گوئی کہہ کی سکتے تھی ہیں. کہ مرزا طاہر کو کہ اپنی بیٹی طوبہ کی شادی یہاں نہ کرنا، وہ گھر واپس آ جائے گی. وہ 6 مہینے میں گھر واپس آ گئی تھی. پھر وہ گونگلوں سے مٹی جھاڑ رہا تھا مرزا طاہر جمعے کے خطبے میں کہ کوئی افسوس کا اظہار نہ کرے، کیونکہ مجھے تو پتا تھا اس کا گھر وہاں پہ بسنا نہیں ہے، مجھے خدا نے بتا دیا تھا. خدا نے نہیں بتایا تھا، جمبا صاحب نے بتایا تھا. چلیں ٹھیک ہے، میں ان سے وہ ثبوت اور جو وہ دینا خطبہ بھی ہم چاہتے ہیں دے وہ میں دیتے ہیں خود دیکھ مرزا لوں گا. طاہر کا کہ ہم سے ہمدردی نہ کریں. مجھے تو پہلے ہی پتا تھا. پہلے پتا میں تھا تو پھر تم نے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کیوں کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، میں پھر ان سے یہ ثبوت خود لے لوں گا اور پھر اس میں دیکھوں گا کہ وہ آپ کی ڈیمانڈ کے مطابق ٹھیک ہے بھی کہ نہیں. ہاں بات جی، ختم. جرمن ڈاکٹر کا ثبوت چاہیے، ظاہر کسی ہے مرزائی ڈاکٹر کا ثبوت نہیں چاہیے. صحیح ہے. ہاں جی. اور اس کے علاوہ جھوٹ بتاؤں گا، میں ثابت کروں گا مرزا محمود کے جھوٹ، مرزا ناصر کے 1978 کے بولے ہوئے جھوٹ، مرزا طاہر کے جھوٹ، مرزا مسرور کے جھوٹ بھی میں ثابت کروں گا. اور مرزا غلام اگر احمد کسی مرزائی میں ہمت ہے تو میرا مقابلہ کرے، سامنے آئے. نہیں، مرزا غلام احمد قادیانی کے بھی جھوٹ آپ ثابت کریں گے، ٹھیک ہے؟ نہیں، وہ آپ کرتے ہو، روز کرتے ہو، ان کو کاذب دجال ثابت کرتے ہو. یا یہ سارے جھوٹ مرزائی تو ہم جماعت بتا رہے مرزا ہیں صاحب جہاں کو پر روز آپ کریں. کاذب اور دجال ثابت کر کے جاتی ہے. چلو پھر وہ راجہ صاحب کریں گے. وہ تو کرتے ہیں نا روز. میں آ کے جی وہ جھلی بڑھ گئی پیٹ کی، سیالکوٹ سے وہ آیا، مرزا صاحب نے کرتا اٹھایا، ہاتھ پھیرا، ماشاءاللہ سبحان اللہ، وہ اس کی جھلی ٹھیک ہو گئی. بھائی مرزا صاحب تو اپنے فوت ہونے تک اپنی بیماریوں کے ساتھ لڑتے رہے ہیں. کیسے کیسے یہ بہرحال جھوٹ بول کے چندہ نکلواتے ہیں لوگوں سے. بہرحال پھر جی عسکری مرزا بھائی صاحب کی نے ایک آواز سوٹا بہت رکھا کم ہے. ہوا تھا، مرزا صاحب نے کہا یہ سوٹا لے جو، جس گھر میں ہوگا اس گھر میں سانپ نہیں آئے گا. مرزا صاحب کے گھر میں سوٹا تھا، مرزا صاحب کے گھر میں ایک سانپ پل رہا تھا مرزا محمود کی شکل میں. یعنی سوٹا کسی کام کا نہیں تھا. سوٹا انہوں نے کہانیاں بنائی ہوئی ہیں چندے لوٹنے کے لیے احمدیوں سے. چندے شروع کس نے کیے تھے اکبر بھائی؟ اور مرزا صاحب نے تو ایک چندہ لگایا تھا، چلو وہ بھی ایک کیا اپنی مطلب مرضی ہے، سے دو، جتنا اپنے اوپر خود مقرر کر لو. کوئی 1.5 50 بھائی نا. پیسے دے، 1 روپیہ دے. اگوں مرزا محمود نے آ کے ٹھوک دیتا انہوں بنی اسرائیل دی طرح. انہیں پرسنٹیج لاتی. دنیا دے وچ چیریٹی ہوندی ہے، کتے کوئی پرسنٹیج نہیں ہوندی. یہ مرزا محمود نے چنگا ٹھوکیا احمدیاں نو. مرزا صاحب نے شروع کیتا نا. نہیں، مرزا صاحب نے تو ایک چندہ اس ٹائم انہوں نے ضرورت تھی. جی السلام باقی تو علیکم. ٹھوکیا ہے نا خلیفیاں نے. اطاعت دی گھوڑی بنا کے چنگا ٹھوکیا احمدیاں نو. وہی تو میں کہہ رہا مسعود صاحب کہ دیکھو لڈو مذہب کر دے. یہ قادیانی اکبر صاحب قادیانیوں کے چلو فرقے جی پھر جمبا اللہ گروپ سے حافظ. تعلق رکھتے ہیں، اور ٹاک ماسٹر صاحب قادیانیوں کے فرقہ سوریہ سے تعلق رکھتے ہیں. مفتی مبشر صاحب اب یہ دیکھیں یہ آپس میں ایک منٹ دونوں میری گل بیٹھ کے نا سننا، مرزا مفتی قادیانی کو صاحب جوتیاں رسید ایک کر منٹ رہے گل ہیں. سننا، ایک منٹ گل سننا. وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ مرزا قادیانی کے جھوٹ بھی بیان کرو، وہ کہتے ہیں نہیں تم جھوٹ بیان کرتے ہو. اب یہ دیکھ لیں
ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ, ਮੈਂ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕ। ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਬਾਤ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੇ ਸੁਣ ਲਓ ਨਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਸੁਣਾਓ ਦੇਰ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਸਨ ਆਪੇ, तो ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ। सुनाओ सुनाओ। अच्छा मैं उर्दू में बात करता हूँ। तो बात ये है कि ये है दोस्तों, ये है कादियानियत। वक्त आने पे ये ना अपने मिर्दे कादियानी को इन्हें लितर फेरने शुरू कर देते हैं और इनकी सारी ना कुर्सियों की लड़ाइयाँ पड़ी हुई हैं। एक कादियानी कहता है कि मैंने चौधरी बनना है, मैंने फिरके का जो है ना वो बनना है खलीफा। दूसरा कादियानी कहता है नहीं मैं बनना है। तो इनके तो कोई 7100 फिरका इनके अपने अंदर बन गए है और इनको मिर्जे कादियानी की इज्जत से कोई लेना देना है ही नहीं, इनको सिर्फ अपनी कुर्सी से है लेना देना। और ये 24 घंटे बैठ के ना आपस में कुत्तों की तरह लड़ाइयाँ होती हैं इन कादियानियों की, एक दूसरे के ना खंबे पुटते हैं ये। अब वो तितर हो गए हैं ना, तितर हो गए हैं ना। ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਮਜ਼ਹਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ कि ਉਹਨੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਤੇ ਮੁੰਡਾ ਜੰਮਿਆ ਤੇ वो जी मिर्जा ताहिर की कुड़ी से मैंने निकाह करना था तूबा से, जंबा साहब कहते हैं उन्होंने किधर और कर दिता। ते बस ये कुड़ियों के लेने देने पड़े हुए इनको, बस और कोई चक्कर ही कोई नहीं है। या तो कुर्सी का लेना देना है या कादियानी कुड़ी का लेना देना है। तो ये है कादियानियत, असल हकीकत ये है इन कादियानियों की। तो ये अभी जो बैठे हुए थे टाक मास्टर नाम की आईडी से, ये मिर्जा मसरूर वाले फिरके से ताल्लुक रखते हैं। और ये जो बैठे हुए थे अभी अकबर साहब, ये कादियानियों का एक फिरका है अब्दुल गफार जंबा ग्रुप, उससे ये ताल्लुक रखते हैं। और अभी जनाब एक तीसरा फिरके से ताल्लुक रखने वाले नज़ीर साहब भी तशरीफ ले आए हैं, अब इनकी सुन लीजिएगा। जी नज़ीर साहब, ये आपके दो फिरकों के भाई ये आके कह रहे थे कि मिर्जा कादियानी के झूठ किस फिरके ने बयान करने हैं, तो अब आप बयान करेंगे कि नहीं मिर्जे कादियानी के झूठ फरेब। जी नज़ीर साहब, ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਦਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੀਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਥੋੜੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਤਾ ਕੋਈ ਐਸਾ ਪੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਮ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, इलम वाली ज़बान, मिर्जा कादियानी ते झूठ कोई थोड़ा जिहा बयान कर दियो, इखलाक मुहम्मदी बयान करने वाली ज़बान हो जाए। कोई दम करवाओ भाई, पीर साहब तुसी किधर पीर साहब लभो ते ओदे कोल दम करवा के आओ। चलो मैं बयान करता हूँ, चलो फिर माइक म्यूट करें, फूके मारो ते दवान माइक साफ म्यूट करें, मैं बयान करता हूँ। उम्मत महरूम हो रही है ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਲਮ ਤੋਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਜ਼ਬਾन साफ कर लोगे तो की जी पता। मैं बयान करता हूँ, माइक तो म्यूट करेंगे तो फिर है ना, आप जो काम नहीं कर सकते वो आजज हाजिर है ना। हाँ तुसी दम करवाओ तुसी पीर कोलों, पीर कोलों आपके दम फिरके करवा तो मिर्जा कादियानी के झूठ और फरेब नहीं बयान करते, चलो हम बयान कर देते हैं, हमारी जुबान से सुन लें। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ माइक जरा म्यूट करेंगे तो फिर ये ना नज़ीर साहब ਗੱਲ ਸੁਣ थोड़ा जा मौका दिओ, सानू भी वारी दिओ, साडा भी कोई थोड़ा जा। ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਤੀ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਦਰਦਾਨ ਇਹਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਥੋੜੇ ਕਦਰਦਾਨ ਹੈ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆਏਗਾ ਕਿ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਕੋਈ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੁਹਾਡੀ। ओए कुत्ती नहीं सी, और कुत्ती दा बच्चा सी, कुत्ती का बच्चा। वो जड़ा ना मिर्जा जी ने क्या सी, असल खुदा परस्त बनो। असली खुदा परस्त बनने का तरीका है कि कुत्ती दा बच्चा बन जाओ। ਤੁਹਾਡੇ वो ਬਜ਼ੁਰਗ कुत्ती ਜਿਹੜੇ नहीं, आप गलत बयानी कर रहे हैं। ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਮੁਕਰਰ ਸਨ, ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਨਾ। नहीं सही बयानी करें ना, गलत बयानी ना करें, ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, सच्ची बयानी करें, सच्ची बयानी, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ गलत ਸੀ बयानी ना करें। ਆਖਰੀ ਵਕਤ ਚ ਪੇਚਸ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਭੌਂਕਦੀ ਸੀ नहीं ਤੇ ਸਾਰੇ पेचस ते माशाअल्लाह हज़रत जी नूं जमदे ही लगे हुए सन। ਉਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਔਰ ਰਾਤ ਚ 100 ਦਫਾ ਟੱਟੀ ਮੁੱਤਰ ਮੈਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਅਤਾਉल्ला शाह बुखारी वाली जुबान ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਤੱਕ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਹੈ, ਉਹੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦੀ ਹੁੰਦੀ। ਡਰੋ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਟਾਈਮ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਬਦਲਣੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖ ਲਓ, ਡਰੋ ਕਿ ਆਖਰੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਭੌਂਕੋਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੁੱਤੀ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਲਫ਼ਜ਼ ਕੁੱਤੀ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ, ਮਲਫੂਜ਼ਾਤ ਜਿਲਦ ਪੰਜਮ ਤੇ ਸਫਾ 97। वत भौक हो गए, वत चला गया। ओहो, मलफूजात जिल्द पंजम ते सफा 97। मिर्जा जी फरमाते हैं सच्चे खुदा परस्त बनो,
اور سچا خدا پرست بننے کا طریقہ انہوں نے بتایا کہ کتورے بن جاؤ، یعنی کتی کے بچے بن جاؤ. تو چلے ہی گئے. ابھی جھوٹ میں نے بیان کرنے تھے تو چلو میں 2-4 جھوٹ بیان کرتا ہوں مرزا جی کے. آپ مرزا جی کے 2-4 جھوٹ سنیں جی. فرماتے ہیں کہ احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ مسیح موعود 6,000 میں پیدا ہوگا. روحانی خزائن جلد 22 ہے، صفحہ 209 ہے. دنیا کی کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو قادیانیوں، منہ مانگا انعام لے لو. مرزا قادیانی تو کہتا ہے احادیث صحیحہ میں آیا ہے. آگے اگلی گپ سنو جی مرزا جی کی. فرماتے ہیں روحانی خزائن جلد 21 ہے، صفحہ 118 کے اوپر. بعض احادیث میں بھی آ چکا ہے کہ آنے والے مسیح کی ایک یہ بھی علامت ہے کہ وہ ذوالقرنین ہوگا. دنیا کی کسی ایک حدیث سے ثابت کر دو، منہ مانگا انعام لے لو قادیانیوں. یا مان لو کہ مرزا قادیانی کذاب ہے، فراڈی ہے، اور جو کہ نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جھوٹ بولتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، او کما قال علیہ السلام. فرمایا کسی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی نہیں، فرمایا کہ جس نے میری طرف جھوٹ کی نسبت کی اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور مرزا جہنمی ہے، کذاب ہے، فراڈی ہے، جس کے بارے مرزا کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ کذابون اور دجالون ظاہر ہوں گے، جو کہ تمہیں ایسی ایسی حدیثیں سنائیں گے جو نہ تم نے سنی ہوں گی نہ تمہارے باپ دادوں نے سنی ہوں گی. حضور نے ان کو دجالون اور کذابون کہا ہے، کذاب اور دجال کہا ہے. اوے مان لو کہ مرزا قادیانی دجال اور کذاب ہے، حدیث کی روح سے، حضور کے فرمان کی روح سے، یا یہ ثابت کر کے ہم سے منہ مانگا انعام لے لو. آ جاؤ. جھوٹ وہ لوری کہہ رہا ہے، وہ جمبا گروپ کہہ رہا ہے کہ تم جھوٹ بیان کرو، تو وہ سوری گروپ کہہ رہا ہے کہ نہیں تم بیان کرو مرزا قادیانی کے جھوٹ. لو تو بیان کوئی کسی ایک نے بھی نہیں کیا. تو پھر جب تم نہیں مرزے کے جھوٹ بیان کرو کہ مولویوں نے تو کرنے ہی کرنے ہیں، تو بھاگتے کیوں ہو؟ ڈٹ کے مقابلہ کیا کرو قادیانیوں. تمہیں کوئی منہ میں ڈال لے گا کیا؟ رکتے ہی نہیں ہیں، دوڑنے کی کرتے ہیں. دوڑے لگوا دی ہیں تمہاری اوے اللہ کے حکم سے. اوے قادیانیوں، اوے کیا تمہارے اوپر عذاب طاری ہو گیا قادیانیوں کہ کوئی مجاہد ختم نبوت ابھی جاتا ہے تو تم لوگ بھاگ جاتے ہو، اور ٹکتے ہی نہیں ہوئے قادیانیوں. اور دوڑے لگوا دی مجاہدین ختم نبوت نے تمہاری. سنو جی مرزا جی کی گپ سنو جی. فرماتے ہیں حدیثوں میں صاف طور پر بھی بتلایا گیا ہے کہ مسیح موعود کی بھی تکفیر ہوگی اور علماء وقت اس کو کافر ٹھہرائیں گے اور کہیں گے کہ یہ کیسا مسیح ہے، اس نے تو ہمارے دین کی بیخ کو نہیں کر دی. روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 213 کے اوپر. میں کہتا ہوں دنیا کی کسی ایک حدیث سے یہ ثابت کر دو، منہ مانگا انعام لے لو قادیانیوں. جاؤ. اور 3 مرزا قادیانی کی بیان کردہ حدیثیں میں نے پیش کی ہیں. ابھی 3 میں یہاں 10 حدیثیں پیش کر سکتا ہوں کہ جو دنیا کی کسی ایک کتاب میں نہیں لکھی ہوئی لیکن مرزا کی کتاب میں ضرور لکھی ہوئی ہیں. مقابلہ کرو نہ ہو، نکلو قادیانیوں، نکلو باہر. صرف گالیاں نکالنا، بد کلامیاں کرنا، الزام لگانا، یہی ہے تمہارا دین مذہب قادیانیوں. اور آج تک الحمدللہ ہم نے کبھی گال نہیں نکالی تمہیں. مرزا قادیانی ضرور تم کو گالیاں نکالتا ہے. کبھی وہ کتی کا بچہ کہتا ہے، کبھی رنڈی کا بچہ کہتا ہے، کبھی گشتی کا پتر کہتا ہے، کبھی حرامی کہتا ہے، کبھی خنزیر کہتا ہے، اور تم کو کہتا ہے مرزا قادیانی کہتا ہے. تمہاری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں یہ ساری گالیاں.
اگر کوئی شک اور شبہ ہو تو آؤ ہمارے سامنے آ کے شک شبہ دور کر لو اور ہمیں کہو کہ یہ کہاں پہ مرزا نے گالی لکھی ہے. ثبوت نہ دے تو ہمیں تم کہنا کہ تم جھوٹے ہو. کی مسعود صاحب کرو گل بھائی, نس بھج گئے نے ہوں, بندہ کی کرے اتنے. مفتی صاحب میں نے آپ سے کچھ سوال کرنا ہے. جی آسکانی سے. مفتی صاحب یہ ہمارے ساتھی خاص کر عامر نذیر صاحب اور یہ ولید صاحب جب مسلمان کوئی سچی بات کرتے ہیں یہ کیوں بھاگتے ہیں؟ ان کی بھاگنے کی وجہ سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اصل میں آسکانی صاحب ان کو پتہ ہے کہ ہم جھوٹے ہیں, مرزا قادیانی جھوٹا ہے, کذاب ہے, ان کو پتہ ہے, سب پتہ ہے ان کو. یہ اس لیے رکتے نہیں ہیں, بھاگ جاتے ہیں. جی آپ میرا سوال ہی نہیں سمجھے. میرا عرض یہ ہے کہ عامر نذیر صاحب اور ولید صاحب جب میں کوئی بات کر لیتا ہوں یہ دم دبا کے بھاگتے کیوں ہیں؟ عامر نذیر صاحب بھاگتے ہیں؟ جی اچھا مجھے تو نہیں پتا, میں نے کبھی دیکھا. اب میں بات کر رہا تھا عامر نذیر صاحب کے جگری دوست سے, کیا نام ہے وہ, حلیم. کیونکہ حلیم کیا نام ہے؟ عامر نذیر صاحب کے دوست حلیم جی قادیانی. علیم. اچھا علیم. جی یہاں بکواس کر رہے تھے اور زبان درازی کر رہے تھے میرے بارے میں. میں نے جب ان کو گلے سے پکڑ لیا تو عامر نذیر صاحب دم دبا کے اپنا ہی بروڈ چھوڑ دیا, اور صدر مناظر بنے ہوئے تھے ولید صاحب, وہ بھی دم دبا کے پر کر کے عامر نذیر کے پیچھے. وجہ میں نے یہ اصل میں آسکانی صاحب میرے علم میں تو نہیں ہے کوئی کہ کیا ہوا, کیا ماجرا ہوا یوں مفتی صاحب کہ حلیم صاحب آئے اور حلیم صاحب گفتگو کر رہے تھے. اچھا اور حلیم صاحب نے یہ کہا کہ جمبا نے جھوٹ بولا ہے. وہ ہم تو جانتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, سب جھوٹے ہیں. ہم نے تحقیق کی ہے, اس ڈاکٹر نے یہ بتایا ہے ہمیں کہ میں نے تو شروع سے کہا تھا کہ لڑکا ہوگا, میں نے تو لڑکی کہا ہی نہیں ہے. تو یہاں پر وہ دوسرا جو ساتھی ہے جمبا کو ماننے والا اکبر خان, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ثبوت پیش کیجئے. اب حلیم صاحب آ کے کیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے میں ویڈیو بناؤں گا اس میں ثبوت دے دوں گا. بھائی تیری بھاشن کی کیا اوقات ہے؟ تم اس ڈاکٹر کا جس نے یہ ثبوت دیا ہے, یہ کہا ہے کہ جمبا جھوٹ بول رہے ہیں, میں نے تو شروع سے لڑکی, وہ ویڈیو پیش کرو. میں نے کہا کہ حلیم صاحب آپ کی ویڈیو کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی, آپ جو کچھ کہیں گے, جس طرح لطیف صاحب نے کہا نا جھوٹ بول کے 5-6 آڈیو بنائے, عامر نذیر صاحب کو دے دیا کہ یہ دیکھو ثبوت ہے. انہوں نے کیونکہ جھوٹ بولا تھا کہ مرزا جی کا وہی عقیدہ ہے جو احمد دیداس کا ہے, جو احمد دیداس کا عقیدہ ہے وہی مرزا جی کا عقیدہ ہے. وہ کہاں پیش کرو, پیش نہیں کر پائے. اپنی ویڈیو قسطواری بناتے گئے, تم بھی وہی کرو گے, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی. مجھے آ کر یہ کہتا ہے یہ قادیانی عامر نذیر صاحب کا دوست جگری کہ آسکانی تجھے تو گفتگو کا آداب ہی نہیں ہے, تمہیں تو تمیز ہی نہیں ہے. مجھے بدتمیز اور اپنے جو ہے وہ غلط باتوں سے مجھے زیر کرنا چاہتا تھا. میں نے عامر نذیر صاحب کے دوست کے گلے پر جو ہے اپنا پاؤں رکھ دیا اور اس کو جو ہے دبانا شروع کر دیا. عامر صاحب کو تکلیف ہوئی اور گروپ چھوڑ کے بھاگے, اور اکثر یہی کرتے ہیں. اس سے میری بےزتی ہوئی, بھلے انہوں نے کچھ نہیں کہا, بھلے کسی کو الزام نہیں لگائیں. پیر صاحب اپنا مفتی صاحب ان کے سیلر نہیں ہے تو وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں, ادھر یہ غلط بیانی کر رہے ہیں. پیر صاحب بالکل غلط بیانی کر رہے ہیں. میں نا احمد علی ماجرے کو بیٹھ کے سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. میرے پاس مالک ہے, میری بات سنیں, میرے پاس مالک ہے, مجھے مجبوری بولنا پڑا ہے. وہ گاڑی چلا رہے تھے, ان کو میں نے بولا بھی میں کنٹرول نہیں کر سکتا, تو ان کے سگنل نہیں ہے تو وہ نیچے اتر گئے ہیں. جب ان کے سگنل ڈراپ ہو گئے تو یہ غلط بیانی ادھر کر رہے ہیں. پیر صاحب ان کا دوست ہے, وہ بھاگ گیا ہے. یہ بات اچھی نہیں ہے پیر صاحب, اس طرح لڑائی ہوتی ہے آپس میں, یہ اچھی باتیں نہیں ہوتی ہیں. آپ کریں مفتی صاحب بات. اچھا یہ ہے کہ آپ نے میرا گلا دبانا ہے تو دبا دیجئے. بات یہ ہے مفتی صاحب, جب میں بات کر رہا تھا تو عامر نذیر صاحب آئے اور چلا کے کہا خاموش خاموش خاموش. کیوں کر رہا تھا یہ, کیوں خاموش؟ میں نے تو اپنے مجرم کو پکڑا ہوا ہے
जिसने मुझ पर जो है ज्यादती की, आप क्यों मुझे खामोश कर रहे हैं? कि पीर साहब के शोर ना करें, आप अकेले को नहीं बोला, हमने दोनों को बोला था ठीक है रिकॉर्डिंग मेरे पास है। मुझे किस हक में बोला? अच्छा अली साहब मेरी गलती है, अभी थोड़ा सा मुफ्ती साहब से बात तो करने दीजिए। यार फायदा उठाए, मैं ब्राड कंट्रोल नहीं कर सकता, मालिक मेरे पास है ज्यादा, मैं ब्राड बंद कर लूँ, ना तो अमर भाई है तो ना तो बंद ही करेंगे, यही करोगे आप लोग, हमेशा यही करते हो ना भाई। अहमद आखिरी बात मुझे कह लेने दें, फिर ब्राड बंद करिएगा ताकि रिकॉर्डिंग हो रही है। आप लोग यही करते हो, अहमद यही बात जाते हो जब अपनी गलती देखते हो। अहमद आखिरी बात मुझे कर लेने देना, तो फिर ब्राड बंद मुफ्ती करना। साहब मेरी बात मुकम्मल सुन लीजिए, मैं दो टोक अल्फाज में मुज़म्मत आसकानी साहब जरा माजरत, मुझे माजरत सिर्फ 2 मेरी मिनट, बात ज्यादा तो नहीं, मुकम्मल मुझे होने सिर्फ 2 दीजिए, मेरी बात तो मुकम्मल होने दीजिए। मुफ्ती साहब आमिर रजी साहब दुम दबा के भागे, और बंदा कॉल उठाया। दूसरा क्या है, वो वलीद आमिर रजी साहब के पास हुज्जत होगी कि नेट का उसका मामला था, हो ठीक है, झूठ बोल के। आमिर भाई आ गए हैं, आमिर भाई आ गए हैं, आमिर भाई को ऊपर लो। अमर भाई याद ब्राड बहना होवे ते ठीक ना बहना होवे सारे उतरे ला दिया करो, अली म्यूट सारे ला दिया करो, मैं काम छड़ के मालिक मेरे कोल ने ते तमाशबीनी मैनू वालक नाल भी लगी है। भाई मुझे म्यूट क्यों कर रहे हो जालिमो? अपने काम वाल ध्यान कर लगा रहे। जालिमो मुझे क्यों म्यूट कर रहे हो? अली ना म्यूट कर। अच्छा मुफ्ती साहब मुझे ये बताइए, आमिर नजीर साहब, जब मैंने आमिर नजीर साहब के दोस्त के गले को पकड़ा और दबाना शुरू कर दिया क्योंकि उसने ज्यादती की मुझ पे, यहाँ आके उन्होंने शोर कर दिया चुप करो, देखा मैं चुप नहीं करूंगा क्योंकि मेरा तो वो मुजरिम है। अब आमिर साहब दुम दबा के भागे बरोड से। वली साहब जो सदर मुनाजर बने हुए थे, जब देखा इमाम साहब भागे हैं वो भी भागे, उनका भी नेट खराब था। इससे हुई मेरी बेइज्जती। ये मुसलमानों की बेइज्जती खुद क्यों करते हैं आमिर साहब और वलीद साहब? ये है मेरा सवाल, बस ये है मेरा गिला साहब इनसे। बात समझ आ गई है मुझे, मैं अर्ज करता हूँ। बात ये है कि पता है क्या, आप सारे ही मुजाहिदीन खत्म नबूवत हैं, तो कोई ऐसी कोई काम ना किया जाए कि जिससे ये कादियानी दुश्मनों को कोई फ़ायदा हो और वो जग हसाई बन जाए, और अच्छा नहीं लगता, बहुत ही गैर मुनासिब है। अगली बात यह है कि आमिर नज़ीर भाई का अपना एक मजाज है, और बसा औकात ऐसे होता है कि बंदा एक गुफ्तगू चल रही होती है तो बीच में कोई थोड़ा बहुत भी बोले तो वो एक मुनाजर को वो बड़ा अजीब सा लगता है। तो वो हम भी कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि आमिर नज़ीर भाई को मैंने चुप करवा दिया है क्योंकि बात मेरी चल रही है, तो इन्होंने कभी नहीं बुरा महसूस किया। और ऐसे ही मैंने कई दफ़ा बात की तो इन्होंने मुझे भी चुप करवा दिया, चुप, तो मैंने कभी बुरा नहीं महसूस किया। तो ये मामूल की बातें हैं। तो उन्होंने तो देखिए आपको अपना भाई समझ के ही चुप करवाया ना भाई। रोब और दबदबा तो वहाँ ही चलता है कि जहाँ पे कोई अपना होता है, पता होता है कि भाई ये आगे से जर जाएगा, ये सब्र और तहम्मुल कर जाएगा, ये आगे से गुस्सा नहीं करेगा। तो ये बातें तो वैसे तो आसकानी सा प्यार मोहब्बत वाली हैं, तो कोई ऐसा काम ना किया जाए जिससे कादियानी खुश हों। बस मैंने यही कहना। मुझे वो गाली देते, मुझे वो उतार देते, मुझे दुख नहीं होता, लेकिन उन्होंने बगैर कुछ कहे मेरी बेइज्जती की। क्यों मेरी बेइज्जती की? और ये पहली मर्तबा नहीं है। मुफ्ती साहब और वलीद साहब भी दुम दबा के उसके पीछे भागे। मुफ्ती साहब ये बेइज्जती क्यों की? मैं ये कह रहा हूँ। मुफ्ती साहब मेरी तरफ से माफी मांग। ये साहब एक हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी आए, उन्होंने फरमाया जी तू चुप कर, साडे अपने आपस दा मसला है, तू कौन आ गया? चुप कर, चल निकल, मैं तेनू कड्डन लगा, निकल तू। अच्छा आसकानी साहब, आमिर नज़ीर साहब की तरफ से अगर आपका दिल कोई दुख है, तो अगर आपने महसूस किया है तो मैं माजरत चाहता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है? तो वैसे ऐसी बात हो नहीं सकती। कोई यकीन, एक बंदा होता है ना यकीन कर ले, मैं यकीन नहीं कर सकता, ऐसा नहीं हुआ होगा, कतल नहीं हुआ होगा। बात यह कि गलतफहमी हो जाती है, कोई बात नहीं। और अगली बात आसकानी साहब ये है कि खास करके जो कादियानियत के रद्द पर काम करते हैं ना जो लोग, वो अपनी इज्जत नफ्स को घर में छोड़ के आते हैं।
वो अपने आप को तो कुछ समझते ही नहीं ना, ये वैसे है। तो कोई नहीं बात है, अगर आप समझते हैं कि आपकी बेइज्जती हुई तो ये है कि अव्वल तो आपको खुद ही माफ कर देना चाहिए था, और अगर फिर भी नफ्सो शैतान उबारे तो मैं आपको से माफी का तलबगार हूं, ठीक है। तो आप देखें, इसका फायदा ना सरासर कादियानियों को होना कुछ भी नहीं। तो लेकिन मेरी अल्लाह तरफ से, मुफ्ती साहब सुन लीजिए, मेरी तरफ से तो माफ है, लेकिन ये हरकत जो है जो की गई, ये कौन दे रहा है? ये जो है वो कादियानी को आमिर नज़ीर साहब, मैं उनका भाई जब बात कर रहा हूँ, अपने मुजरिम को पकड़ा हुआ हूँ, तो उनको चाहिए ये कि भाई आपने तो बेइज्जती की, अगर नहीं करेंगे तो खामोश तो रहें कम से कम, या मुझे खामोश करें गिराएं, कहें आप आस्कानी साहब मैंने आपको गिराया है, बाद में हम बात कर लेते हैं, मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगा। लेकिन मेरी गुफ्तगू के दौरान ब्रोड छोड़ के भाग जाना, और जो वलीद साहब उनके शागिर्द हैं और सदर मुनाजिर थे, उनका भी दुम दबा के भागना, ये बात कादियानियों के हक में थी। ये इनको जेब नहीं देता कि इस तरह के करें। भाई उनको पसंद नहीं आया, मेरे बड़े हैं, वो नीचे मुझे उतार दे और कहें आस्कानी साहब मैंने इसलिए आपको उतारा है, इस वक्त आपको बोलने की जरूरत नहीं, मुझसे बाद में बात कर लीजिएगा, खलास, मैं उनसे पूछूंगा भी नहीं बाद में। लेकिन ब्रोड को मैं अपने उस इंसान से जिसने मेरी बेइज्जती की, मैं उनको पकड़ा हुआ हूं। आमिर नज़ीर साहब का ये आकर कहना खामोश हो जाओ, खामोश हो जाओ, अब जब दोनों तरफें खामोश नहीं हो रहे, खुद भाग जाते हैं, ये बेइज्जती है मेरी। आगे जो सरद मुनाजर हैं, देखा इमाम साहब भागे, ये भी भाग जाते हैं, गोया कि आस्कानी इस वक्त तुम गलत कर रहे हो। इन्होंने साफ ये कह दिया, कादियानी को बता दिया कि आस्कानी साहब यहाँ पर गलत थे, आस्कानी साहब बोल रहे थे, इसलिए हम इस गुफ्तगू में शामिल नहीं हैं। हमारे हलीम, हमारे दोस्त जिगरी, हम आपके साथ हैं, आस्कानी पागल है। मैं इससे ये समझा हूँ, जो बहुत गलत बात थी। अस्सलाम वालेकुम। बाकी माफ है मेरी तरफ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आस्कानी साहब गुजारिश ये है कि चलें, कोई नहीं, खैर मेरे अगर कोई ज़्यादा कोई मसला हुआ तो वो बंदा पर्सनल के अंदर कर लेता है, कोई मसला, ये हमारे आपस में भाइयों के मसले हम कर लेंगे तय, वो कोई मसला नहीं, इसको इतनी हवा नहीं देंगे हम, इतना तूल नहीं देंगे। यकीन मानिए, ये देखिए अहमद अली की ब्राड़ लगी है, तो कोई कुछ अर्सा कबल इसके साथ मेरी भी ब्राड़ के ऊपर हुई है। इन्होंने, मसूद साहब जरा माइक म्यूट करिए। तो मतलब ये कि ब्राड़ से इन्होंने मुझे उतार दिया, हालांकि मेरी डिबेट चल रही थी। यकीन जाने मैंने कोई बुरा महसूस नहीं किया, हो जाता है, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, कोई मतलब, और दूसरा जो होस्ट कर रहा है उसके अपने कुछ मामलात हैं, वो सारी चीजों को देखना पड़ता है। पता नहीं उसके साथ भाई क्या मसला हो, क्या वो मैनेज कर रहा है, ब्राड कर रहा है वो, तो ये मामला तो हो जाते हैं, ये कोई इतनी कोई बड़ी कोई बात नहीं है। तो और तजलील की बात जो आप कर रहे हैं कि नहीं, आमिर साहब की ऐसी तबीयत ही नहीं है, ये तो कादियानियों की तजलील नहीं करते तो अपने भाइयों की इन्होंने करनी है, ऐसा नहीं है। तो आपको वो हो सकता है कोई मुफ्ती भाई, इसीलिए आमिर भाई को बोलने दे, जरा नज़ीर भाई को आने दे माइक पे, वो यहीं बैठे हुए हैं। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि उनकी गुफ्तगू में एक लतीफ़ नुक्ता है जो आपने महसूस नहीं किया। वो नुक्ता ये है कि आपको ये पूछ लेना चाहिए उनसे कि आप नेक्स्ट टाइम हमें बता दें कि अगर आपको नीचे उतारा जाए तो बेइज्जती है, या खुद नीचे उतर जाए तो बेइज्जती है। आपने हमें पहले बता देना है, लो भाई तुम्हारे चुप कराने से मैं चुप नहीं कर रहा, अब तुम नीचे उतर जाओ तो मेरी बेइज्जती है, मुझे नीचे उतार दो तो भी बेइज्जती है। भाई क्या करे वो बंदा, क्या करे जो कह रहा है ना लड़ो ना शोर करो। ब्राड पे मच्छी मंडी बनी हुई है, वो भी ऊंची ऊंची आवाज़ से बोल रहे हैं, अलीम साहब भी, और ये भी ऊंची ऊंची आवाज़ से शोर कर रहे हैं ब्राड पे। मैंने कहा चुप कर जाएं, खामोश हो जाएं, नहीं हुए। अब मैं इनको नीचे उतारूं तो बेइज्जती है, या मैं खुद नीचे उतर जाऊं तो बेइज्जती है? कौन सी बेइज्जती है, मुझे ये नहीं पता चल सका। इनसे ये रिक्वेस्ट कर लें कि अगली बार आपने अनाउंस कर देना है कि देखो मैंने चुप नहीं करना, ये मच्छी मंडी हमने जो बनाई हुई है ये जारी रखेंगे, तुम नीचे उतरो तो बेइज्जती है,
जो मुझे नीचे उतारो तो भी बेइज्जती है, तो फिर क्या तुम्हारे पास रास्ता है? आपने सुना हुआ ना वो मकूला के वो बाप बेटा गधा लेकर जा रहे थे, तो किसी ने कहा कि देखो कितने बेवकूफ़ हैं, गधे के ऊपर नहीं बैठते, खुद आगे से पकड़ के चल रहे हैं। तो उसने कहा चलो बाबा आप ऊपर बैठ जाए, मैं नीचे चलता हूँ। वो बाप बैठ गया, तो आगे एक बंदा मिला, उसने कहा कितना जालिम बाप है, बेटा नीचे चल रहा है वो ऊपर बैठा है। उसने कहा अच्छा ऐसे करो तुम ऊपर आ जाओ मैं नीचे चलता हूँ। वो बेटा ऊपर बैठ गया, बाप नीचे चलने लगा। तो एक बंदा मिला, उसने कहा देखो कितना बेअदब गुस्ताख बेटा है, बाप नीचे चल रहा है ऊपर खुद ऊपर बैठा, दोनों ऊपर बैठ गए। तो एक बंदा मिला, उसने कहा देखो कितने जालिम है, गधे के ऊपर दोनों बैठे हुए, छोटा सा गधा बेचारा कितना लोड उठाएगा। तो उन्होंने कहा भाई इसका एक ही हल रह गया कि गधे को सर पे उठा लो। भाई हमें बता दें, अगली बार हमने गधा सर पे उठाना है, क्या करना है हजरत साहब? आपकी मिन्नतें की, चुप कर जाएं, शोर ना करें, शोर ना करें, बारी बारी बात कर लें। यही कहा, क्या गलत कहा? क्या बारी बारी बात करें? जब एक बंदा, मैं एक बात असूली में बयान करके फिर आपको मौका देता हूँ, मिर्जाई यहाँ पर आकर ये कहे कि मैं आपके साथ बारी बारी बात करने के लिए तैयार हूँ, और आप कहें कि मैं आपको बारी नहीं दूंगा, बारी आपकी नहीं है, ज़बरदस्ती करें, मेरी नज़र में हमारी गलती है, हमारी तरफ से गलती है। जब मिर्जाई ये कहे हम बारी बारी बात करने के लिए तैयार, भाई ये तो हमारा असूली मौक़िफ़ है। दुनिया के किसी प्लेटफार्म पर, किसी अदालत में, किसी सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर, किसी में ओए पप्पू ਨੂੰ ਕਿਨੇ ਬਲਾਕ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਾਂ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਨੇ ਮਾਰਿਆ ਬਲਾਕ ਪੱਪੂ ਨੂੰ? ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਤੇ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਲਾਕ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣ ਲੱਗਾ, ਕਾਲ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੀ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨੂੰ अनब्लॉक कर दो, लेकिन वो काल बेशक ना चुको। मैं ये कह रहा हूँ कि ये हमारा असूली मौक़िफ़ है कि मिर्ज़ाई के साथ हम बारी बारी बात करेंगे। अगर आपके पास दलील है उसे कहीं भाई बयान कर लो। और को कहा ने अली ਉਹਨੂੰ अनब्लॉक कर दे, ਉਹਨੇ नहीं मैनू गल करन देनी है। मुफ्ती साहब ਉਹਨੂੰ अनब्लॉक कर दो, थल्ले ਉਹਨੂੰ बैन दो। जी असल च ब्लॉक करना तो मैनू आंदा ते अनब्लॉक करना को नहीं आंदा। ते थल्ले ना कादियानी बड़े खुश हो रहे ने, लुडियां पा रहे ने। चलो भाई लुडियां पाया जे हुन। सीरतुल महदी सफ़ा 781 हिस्सा सोम और कादियानिया दी हदीस नंबर 893। कादी यार मोहम्मद साहब हजरत अकदस को नमाज में तकलीफ देते थे। वो तकलीफ कौन सी देते थे कि मिर्जा कादियानी वो जनाब जब सजदे में जाता था तो कादी यार मोहम्मद आके पीछे से उंगल ठोक देता था, हजरत मसीह मऊद की मोरी के अंदर उंगल ठोक देता था। ये दरमियान वाली फिंगर, वो क्या कहते हैं यार इंग्लिश में? मिडल फिंगर, मिडल फिंगर नहीं, मिडल फिंगर थी वो तल्ला साहब, मिडल फिंगर। पाओ लुटिया, चीका निकलिया जे, पाओ लुटो, लुटिया पाओ, लुटिया पाओ, चीका शुरू, कादियानियां दी चीका शुरू। 14वीं सदी के आलम, तुम्हारी यही लैंग्वेज, यही अखलाक होना चाहिए जो तुमने दिखाया। खुश ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਪੁੱਤਰ, ਜਦੋਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆਪਸ ਚ ਲੜਦੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਢਾਣੀਆਂ ਨੇ, मखलूक और ਤੁਹਾਡੀਆਂ बदतरीन ਚੀਕਾਂ मखलूक, ਕਢਵਾਣੀਆਂ ਨੇ। तो तुम्हारा यही अखलाक होना चाहिए। मलक साहब इखलाक से इंसान कहना चाहता है। आमिर साहब आप आलम ले जाओ चुप के। हाँ जी मैं गल मैंने कर ले तो साडी गल खत्म हो गई। आलम की ज़बान सुन लो। हाँ जी मुसलमानों, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा आशिक साहब। वैसे उन्हें चेक किया है, उन्हें थर्मामीटर ला के चेक किया है भी कितना टेंपरेचर है। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲਮ ਬੜਾ यार नज़ीर भाई दी गल सुनो जरा कर जो कुछ नहीं होने लगा। मुफ्ती साहब ना ये मुसलमानों की मुफ्ती है। ओ चुप कर दो ना मलक साहब, चुप कर दो ना। मुफ्ती की लैंग्वेज और इखलाक तुसी चुप नहीं करना, मैं फिर थल्ले उतर जा। नहीं तुसी गल करो फिर नज़ीर साहब, चुप कर मलक साहब प्लीज चुप हो जाओ। वास्ता जे चुप कर जो, चुप कर जो। मैं देखिए एक फायदे की बात कर, आपके ही फायदे की मैं बात कर रहा हूँ। हमें आप लोगों के साथ दलील से बात करनी आती है, हमारे पास दलाइल मौजूद हैं, हमें आपके साथ धक्का करने की ज़रूरत नहीं है मलक साहब। हम आपके साथ, जब आप कहेंगे भाई आप अपनी बारी में बात कर लो, हम अपनी बारी में बात कर लेंगे। तो हमारा बंदा नहीं मान रहा तो मेरी नज़र में हमारा भाई ज़्यादती कर रहा है। भाई ये है मेरा मौक़िफ़। आप पीर अस्कानी भाई को बात कर लेंगे, फिर मलक साहब आपको देते हैं मौका। जी पीर अस्कानी भाई।
ये हकीकत के खिलाफ आप बात कर रहे हैं, बयान दे रहे हैं, जबकि आपको मालूम है कि आपने अपनी हरकत से मेरी बेइज्जती की, जबकि मेरा और उनका कोई दो बात नहीं चल रहा है कि उसका वक्त है, मेरा वक्त है। मैंने सिर्फ इतनी बात की कि आपने मेरी बेइज्जती की है, उससे माजरत करें। अब उस पर मैं उनको बारी दे दूं कि वो मजीद बात करता रहे और फिर मैं अपनी बारी में बात करूं? नहीं, वो मिनते नहीं आपके कर रहा था, आपको नहीं कह रहा था कि मुझे अपनी बारी। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए ना। अच्छा, अब ये कोई बारी यहाँ पर नहीं चल रही है कि मैं उनको बारी दे दूं कि वो मजीद बातें करते रहे, फिर बात करूं। भाई मैंने उनको ये कहा है कि तुमने मुझे क्यों कहा कि तुम्हें आदाब नहीं आते, तुम बदअखलाक हो, गलत बात की है। मैंने कौन सी गलत बात की है? इससे माजरत करो। वो मजीद अपनी तावीलें कर रहा है, पीछे क्या है वो मुझे मालूम है, आपको नहीं। पीछे इस बात का गरज क्या है वो मुझे मालूम है, जबकि मैं इस तरह की बात करता नहीं हूं, आप अच्छी तरह से जानते हैं। वो मेरा मामला है, उसका मामला है, तुम्हारा नहीं। अब मैं उनको 5 मिनट दे दूं, फिर मैं 5 मिनट बात करूं कि मुनाजरा चल रहा था, नहीं चल रहा था। बात सिर्फ इतनी थी, उसने मेरी बेइज्जती क्यों की, मैं उसको ये पकड़ रहा हूं, तुमने मेरी बेइज्जती क्यों, मुझे बदअखलाक, बदतमीज और गुफ्तगू के आदाब नहीं जानते, मुझे क्यों कहा? इसका जवाब दो, इससे माजरत करो। कहते मैं माजरत नहीं करूंगा, नहीं करेगा मैं बात करने नहीं दूंगा। बात ही खत्म है ना। जब वो माजरत नहीं कर रहा है इस बात से, मैं उसको गुफ्तगू का मौका क्यों दूं, उसकी तावीलें क्यों सुनूं? ये है। अब आपका ये कह देना कि हमारा ये कुलिया कायदा है, ये आपका कुलिया कायदा कादियानियों के लिए है, अपने भाइयों के लिए नहीं है। क्यों आपका अपने भाइयों के लिए नहीं है ये कुलिया कायदा? आप अपने भाइयों को क्यों जूता मारते हैं, क्यों जलील करते हैं? तुम्हारा भाई उस पे एक कादियानी आकर कीचड़ उछाल रहा है और उसको गलत कह रहा है। आप भाई सीधा सीधा कहो कि भाई आपने ये बात गलत की है, माजरत करता है, ठीक, नहीं करता नहीं, आपका इतना ही काम है। ग्रुप छोड़ के भाग जाना और ये कह देना कि हमारे भाई की गलती है, आप कह रहे हैं, यानी आपने मुझे गलत साबित किया। यही तो मैं कह रहा हूँ, यही तो मैं बोलना गया काम छड़ के अकबर साहब ने वैसे 1 to 1 एक मिनट अकबर भाई और दोबारा चलता गया ही पीर साहब ने आगे गंद की थी। वलीद ने आपने भी शरीफ बंदा है, उन्हें हर मुसलमान ये कहेगा। मेरी बात सुनो अमर भाई, उन्हें वलीद गल पे करांदा सी, लीम नहीं दे अकबर हां दी ए मैं थोड़ा ऐसी गलती है। ए जिन्ने भी मुसलमान है ना, मैं कोई लफ्ज की गल करो दे ना, गलती बंदे है, गलती इस बंदे दी पीट दी है। अली खामोश हो जा, खामोश हो जा। मैं कहता हूँ आप मुसलमानों से पूछ लें, जितने भी यहाँ पर भाई बैठे हुए थे, उनमें से अगर कोई कहे कि आप ज्यादती नहीं कर रहे थे, मैं आपसे माजरत मांग करूंगा। मैंने ये किस बात की ज्यादती कर रहा था? सुने तो सही, किस बात की ज्यादती कर रहा था? मैं बताता हूँ ना, मैं बताता हूँ किस बात। बताइए। बात यह है कि जो कुछ उसने आपको कहा, जितनी बड़ी गाली दी, उसको 99 से ज़रब देना। शोर बहुत है आपकी माइक में तरफ अंदर। जितनी उसने आपकी तौहीन कर दी ये कहकर कि आपको तो इखलाक का नहीं पता, आप तो बात करना नहीं जानते, आदाब नहीं है महफिल के, इसको 99 से ज़रब देना। तो भी उससे भी बड़ी गंदी गालियां उस बंदे ने मुफ्ती मुबशर को यहाँ बैठे हुए मेरे सामने दी हैं। मुफ्ती साहब ने बिल्कुल लब नहीं खोले अपने, लेकिन जब मुफ्ती साहब ने लब खोले, उस वक्त आप भागे। सुने तो सही, उस वक्त आप भागे, सुने तो सही, मेरी बात तो सुनिए। नहीं, मैं इस पॉइंट को आपको पकड़ रहा हूँ ना, यही तो पॉइंट है मेरा पॉइंट जिसको आप दरगुजर कर रहे हैं। मैं शिकस्त लिख देता हूँ, आप जीत गए, मैं हार गया, लेकिन बात तो मेरी बात सुन लें। मैं ये कह रहा हूँ, मैं आगे नहीं, उस वक्त आप मुफ्ती साहब ने जब उनको गालियां दी, मुफ्ती साहब को गाली दे रहे थे, आप भागे थे? मैं बताता हूँ। म्यूट करें, आपके माइक से शोर आता है, इतना बात ही नहीं करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि 10 से 15 मिनट तक उस बंदे ने मुफ्ती साहब को गालियां दी, मैं बैठा सुनता रहा, मुफ्ती साहब बैठ के सुनते रहे, कोई बंदा हमें से बोला ही नहीं है, क्योंकि हमारा ये सूल है कि हम बारी बारी बात करेंगे। जब वो बात कर चुकेगा, हमारे पास इतना बड़ा बड़ा इंजेक्शन है कि फिर वो हमारा इंजेक्शन सह नहीं पाएगा। मुफ्ती साहब बोले ही नहीं, वो पहले ही छोड़ के भाग गया। मैंने फोन करके उसको कहा कि आप मैदान छोड़ के क्यों भागे हो? अब मुफ्ती साहब की बारी थी, सुनना था ना। ये है तरीका पीरस्कानी भाई। अगर मैंने ये बात गलत कही है कि मिर्जाई के साथ बारी बारी बात करनी चाहिए, जबकि मिर्जाई आपकी मिन्नत कर रहा है
कि अगर मैंने आपकी तौहीन भी की है, मैंने झूठ भी बोला है, मैंने गलत बात भी कही है, तो मुझे कर लेने दें, आप बाद में कर लेना। ये क्या, इसमें क्या गलती है? बहरहाल अगर आप समझते हैं मुफ्ती कि साहब मैंने की, नहीं सुनो 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 भाई, मुफ्ती साहब की और उनकी क्या बात चल रही थी जो गालियां दी उन्होंने? अब तो वो मुझे गालियां भी याद नहीं है कि 2-3 महीने पुरानी बात। मुफ्ती साहब बताएं क्या उस दिन गालियां आपको दिए थे? क्या हुआ था? बहुत गंदी गंदी गालियां। मैं ना हाँ, क्या हुआ था? वो बात ऐसी थी, मुझे याद है। थोड़ा सा मेहरबानी, मुझे थोड़ा सा टाइम दे दें, मेहरबानी मेहरबानी यार। देखें आसकानी साहब, शोर आ रहा है आप। अच्छा, ये है कि आप दोनों मुअज़्ज़िज़ीन हैं। मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत में आपका एक नाम है, और पता है क्या हो ये रहा है कि जो दीगर मुजाहिदीन ख़त्म नबूवत बैठ के सुन रहे हैं ना, वो परेशान हो रहे हैं, वो परेशान हो रहे हैं आपकी इस उलझन को देख के, वो परेशान हो रहे हैं। कादियानी तो खुश हो ना, उनका तो काम ही है खुश होना, वो यही तो काम चाहते हैं। तो मेहरबानी करें, मैं कहता हूँ मेरी मान लें, यहाँ पर स्टॉप कर दें, मेहरबानी फरमाएं। मैंने तो कह दिया कि मेरी तरफ से ख़त्म है बात, लेकिन मैं यही बताना चाहता था कि आमिर नज़ीर साहब मौके महल को छोड़कर किसी बात को कहीं जाकर पिट कर लेते हैं। आपकी गुफ्तगू का और उनकी गुफ्तगू का कोई मसला कुछ और है, आप दोनों बात कर रहे हैं, वहाँ दो बदू किसी को टाइम है कितना भी। मैं यहाँ पे मैं जिससे बात कर रहा हूँ, मेरी दो बदू उनसे बात चल रही है, वो जितनी भी बात करता है मैं म्यूट हूँ। कभी आप कह नहीं सकते आपने बीच में बोला, बल्कि मेरे टाइम पर जब वो बोलता है मैं कहता हूँ भाई मेरे टाइम पे क्यों बोल रहे हो? जब दो बदू किसी की बात चल रही हो तो उसको टाइम है। यहाँ दो बदू कोई बात नहीं है मेरे उनसे। और पहले ही यहाँ आमिर नज़ीर साहब ने कान में ज़रूर कुछ वहाँ पर डाला होगा, वो खुशबू वगैरह सुना नहीं। जब उन्होंने बात की कि आसकानी का इताब चल रहा है, कौन सा इताब चल रहा है ज़रा पूछा उन्होंने? पीछे क्या बात है उन्होंने पूछा? तकलीफ की इस बात की? वो भूल गए क्योंकि उनका दोस्त है। किस बात का इताब चल रहा है बताओ? मालूम है तुम्हें आमिर नज़ीर साहब किस बात का इताब चल रहा है? क्या बात उन्होंने की थी? आमिर नज़ीर साहब खोलिए मैक। आमिर भाई। अच्छा आसकानी साहब, इधर थोड़ा सा बीच में हाफ टाइम भी होता है ना, तो ये एक मौला बस साहब कादियानी मुरब्बी साहब तशरीफ लाए हैं। ठीक है भाई बात सिर्फ इतना है कि उनको नहीं मालूम पस मंज़र क्या है, आमिर नज़ीर साहब को नहीं मालूम पस मंज़र क्या है, उन्होंने पहले क्या किया, मैंने किस बात को कोट किया, उनको भी नहीं मालूम। और हमारी कोई जो है गुफ्तगू बात चल ही नहीं रही थी। उनको मैंने इसी बात पे पकड़ा, पीछे कोई और मसला है, उनको पकड़ के रखा कि भाई वो आपने जो मुझे बदतमीज़ और बदअखलाक और गुफ्तगू नहीं जानते इसका जवाब दो, माजरत करो। वो मज़ीद तावीलें करेगा, मैं उनको करने नहीं दूंगा। हाँ दूबदू चल रही होती, वो गालियाँ भी देता, मैं खामोश हो जाता। दूबदू बात थी नहीं। ये बात आमिर नज़ीर साहब का सरासर गलत है कि दूबदू बात हो रही थी और आसकानी साहब उनको टाइम नहीं दे रहे थे। आमिर भाई आप गलत कह रहे हैं, लेकिन हमेशा इसी तरह आपकी तरफ से हम जो है छोड़ देखते हैं सख्तियाँ। और वो भी इताब का मसला सबब आप हैं, वो भी सबब आप हैं आमिर भाई, जिसको मैंने पर्दा डाला हुआ है, लेकिन गुस्सा आएगा तो उसको भी पाड़ दूंगा। वो भी सबब आप हैं कि आसकानी का इताब चल रहा है, सबब आप हैं, जिसको मैंने रोक कर रखा हुआ अपने दिल में। आमिर साहब चले ठीक है, अब बात करें, मैं खामोश रहता हूँ, अभी कोई जवाब अच्छा नहीं जी, है। वो मौला बादशाह साहब, ये असल में मिर्जा कादियानी के ऊपर वही नाज़िल हुई और थी, सरकारिया और ये मुफ्ती साहब एक मिनट है, मुफ्ती साहब एक मिनट सरकारिया देखें और बतरियो कितनी ज्यादा। एक मिनट मलिक साहब तुसी ते खलो जो, तुसी ते छुरी वाले साल है लो। मलिक साहब तुसी ते खलो जो, हो गया ने चुप कर जो, चुप कर। पेड़ पे हो बतरियो। और नहीं नहीं 80 नहीं पेड़ दे, 80 नहीं पेड़ दे। नहीं मतलब कितने बंदे अब आपको कह रहे हैं कि पीर असकानी भाई बात को छोड़ दें। आपसे माजरत की मुफ्ती साहब ने, आपने नहीं छोड़ा। आपको कहा गया कि इन लोगों से पूछ लें कि आप सख्ती कर रहे थे कि नहीं, नाजायज़ ज़्यादती कर रहे थे कि नहीं। आपने कहा नहीं, मुझे किसी से पूछने की क्या ज़रूरत है, मैं जानता हूं कि मैं ज़्यादती नहीं कर रहा था। अब फिर मुफ्ती साहब ने फिर मिन्नत की कि पीर असकानी साहब आपकी इस गुफ्तगू से हमारे मुसलमान भाई परेशान हो रहे हैं, लेकिन आपका गुस्सा है कि वो कंट्रोल हो ही नहीं रहा। अब इसको शैतान ना कहा जाए, इस गुस्से को तो क्या कहा जाए कि शैतान आप पर हावी है।
ना आप किसी पंचायत को मानने के लिए तैयार हैं, ना आप माजरत कबूल करने के लिए तैयार हैं, ना आप अपनी गलती मानने के लिए तैयार हैं। क्या है जो मैं कह रहा हूं, हट जाओ पीछे, मैं फाड़ दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। पीर असकानी भाई, किसने मेरे साथ यहां पर क्या नहीं किया जो आप कर लेंगे? वो कौन सा काम है जो किसी मुसलमान ने मेरे साथ आज तक नहीं किया, जो आपके इख्तियार में वो करेंगे तो वो दुनिया तलपट हो जाएगी, एटम बम चल जाएगा, हाइड्रोजन बम है आपके पास जो चल जाएगा। यहां पर मुसलमानों ने मेरे साथ कौन सा काम नहीं किया जो आप कर सकते हैं? हद होती है। अगर कोई बंदा खामोशी से हया करे, एहतराम करे ना, तो उससे एहतराम करवाना चाहिए, वरना जो आपका दिल करता है आप करें। इतनी देर से आपकी मिन्नतें कर रहे हैं सारे लोग कि जाने दें बात को, जाने दें बात को, जाने दें। आप गलती पर थे, फिर मैं कहता हूं आप गलती पर थे। अगर मैं आपको नीचे उतारता तो आपकी तौहीन, अगर मैं खुद नीचे उतरा हूं तो आपकी तौहीन। भाई हमें बता दें कि जब आप तशरीफ लाएं तो आप वहां लिखकर चार्ट लगा दिया करें कि वो कौन सी बात है जिससे आपकी तौहीन नहीं होती, वो तरीका कौन सा है, वो तरीका हमें समझा देना। आज के बाद लिख के लगा देना कि मैं ये करने लगा हूं, तुमने वो करना है तो मेरी तौहीन नहीं होगी। अच्छा, मेरी आखिरी बात सुन लीजिए, भाषण बहुत हो गया आपका। आमिर रजी साहब, आप दुनिया के आखिरी फैसला करने वाले हैं, जो आप कहेंगे कि गलती तो हो गई। मैंने आपको कहा कि आप फैसला लोगों से करवा लें। मैंने आपको कहा ना लोगों से फैसला करवा लें। चमचे हैं ये, आपके चमचे हैं। अच्छा, ये सारे मेरे चमचे हैं, तो आपको दुनिया का कोई मुनसफ पसंद नहीं है, फिर मिर्जाइयों से फैसला करवा लें। नहीं, मैं बता देता हूँ। फिर आप किसी मिर्जाई को मुनसफ बना लें। मास्टर को लाओ, टाक मास्टर को। टाक मास्टर आपका मुनसफ है तो चलो उससे करवा लें। मैंने तो कहा कि कोई आप दुनिया के आखिरी, बहुत अच्छी बात है। अगर आपका मुनसफ टाक मास्टर और वो क्या नाम है अकबर खान है, तो वो उनसे कहलवा लें, उनसे कहलवा लें। ले आओ, मैं ले आऊं फैसला करवाते हैं। मैं कहां से ले आऊंगा? तो मैं कहां से ले आऊं? तो फिर आपका फैसला कौन करे? आप मुझे शैतान कह रहे हैं कि ये शैतानी आपके ऊपर शैतान सवार है, मैं आपको कह रहा हूं। मैं कहता हूं आप शैतान के ऊपर बैठे हुए दिन रात। चलो ठीक। हाँ, फिर ठीक है। कहने में क्या है? आप ये कह रहे हैं कि बम गिरा, मतलब जिस बंदे को 10 बंदे मिन्नतें कर रहे हों, कौन से 10 बंदे मिन्नत कर रहा है? कौन से 10? अली ने आपको रोका, अली ने आपको रोका, अली ने नाराज होकर चला गया। मुफ्ती साहब ने मिन्नत की, मैं मिन्नत कर रहा हूँ। आप खामोश नहीं हो रहे, आप जारी रखे हुए हैं। तो आपने क्यों बोला बीच में? जिस तरह से आपने अलीम के साथ की ना, वैसे ही आप हमारे साथ कर रहे हैं। आमिर साहब, एक मिनट के लिए जब आमिर साहब ने बात की, मैंने अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं उलान लाला बराड़ स्कानी दे उत्ते दे नवाना के ओ बंद कर दे अली। ना 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 अली, नहीं ये रास्ता को दबाते नहीं। मैं ना ओ खामोश है, ओ खामोश हो जा अली। अली ना कर, ना करना, ठीक हो गया। ना करो बतरियां, ना कर, चली गल ना भाई, ना भाई, दिमाग नहीं का काम करदा और तलत मलक तू जो चुप कर, खप पाई जा विच बांदरा जी है, चुप करके बह, नहीं तो मैं हुणे मिर्दे दी तंबी ला लगा। ਤੇ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਆ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮਲਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਤੀਜਾ ਬੰਦਾ ਆ ਜਾਏ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। 2 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ अली भाई 2 मिनट ले ही ब्रॉड बंद कर दो, ठंडा हो जाएगा मसला। ओ बतरियां की हो गया ने यार, छोड़ दें इस बात को। अच्छा जी चलें जी। अच्छा ये वो एक उधार था, मौला बस कादियानी मुरब्बी नीचे कमेंट कर रहा था, बतरियां चुप करे। मलफूजात जिल्द जहारम सफा 577, मलफूजात जिल्द जहारम सफा 577 के ऊपर मिर्जा कादियानी के ऊपर ये वही लिखी हुई है जहाँ पे उसको नाज़िल हुई थी मौला बस। ये पता है वही मलक तलत, ये पता है कब नाज़िल हुई थी? जब मिर्जा कादियानी को 10 महीने का हमल होने लगा था ना, तो उसने गेम बजाई थी काले और कालू, ये लाश ने आके मिर्जे कादियानी की, तो बाद में उसको ये वही नाज़िल हुई थी मौला बस बाबा तका लग गया है, समझ आई कि नहीं? मार जी का हूं, मारो जी का। ओ सूर सरकारी चुप कर, सरकारिया चुप कर।
मैं हाँ, बस चीखां खत्म हो गई कि मेरी उम्मत चीखा में मारो एक कादियानियों। ज़माना आएगा कि मेरी उम्मत के उलमा जमीन के ऊपर आसमान के नीचे ओ मिर्जा कादियानी सी, मिर्जा कादियानी सी बंदर ते सुअर ते खंजीर। मखलूका ओ मिर्जे ने कहा है अपनी जमात को कि मेरी जमात बंदर सुअर आखिरी है। बात सुन लीजिए, बुज़दिली का छेला, सबूत मत बदरी दीजिए, छेला। आखिरी बात सुन लीजिए, बुज़दिली का सबूत मत दीजिए, आखिरी बात सुन लीजिए। बात है आमिर भाई कि आप हमेशा चोट पहुंचाते हैं, सबब बनते हैं, उसके बाद आप आकर कहते हैं कोई शिकायत भी ना करे, शिकायत करेगा बदनाम हो जाएगा, सबब आप हो, सबब आप हो। आखिरी बात यह है कि आपका ग्रुप आपको मुबारक हो, जहां कहीं पर आप होंगे मैं नहीं आऊँगा। पहले मैं समझता था कि शायद आप में कोई अच्छाई है, लेकिन आप में अनानियत फिरौन जितना है, फिरौन। चले पीर साहब बात खत्म अली करें। अली भाई आपको बड़ा लगा हुआ है, आपसे मैं बात नहीं कर रहा। अली साहब मैं आपसे बात नहीं कर रहा। इधर आके ना हराम ना करें ना, मेहरबानी है। तो पीर साहब ने भी बोला भाई है। क्यों उन्होंने रिकॉर्डिंग करानी है ना, उन्होंने रिकॉर्डिंग करानी है, करा लेने दो रिकॉर्डिंग उनको। सबब कौन है ये बताओ, हाँ, सबब कौन है? मैं पीर रिकॉर्डिंग साहब का। आप हैं, फिर पीर साहब आप हैं, आप हैं। फिर जब मुफ्ती साहब ने कहा कि छोड़ दीजिए, मैंने कहा छोड़ा, माफ है, खलास। कब छोड़ा आपने, भाषण कब छोड़ा आपने, भाषण दिया आपने, क्यों? कब छोड़ा आपने? मुफ्ती आप के तो बाद- खामोश हुए मुफ्ती ही के नहीं। बाद आपने भाषण क्यों दिया? भाई साहब मुफ्ती साहब के बाद आप फिर शुरू हो गए। मुफ्ती साहब के बाद मैंने कहा बस बात खत्म आप है, नहीं और खत्म मैं- कर रहे ना, मेरी मेरी तरफ बात से माफ सुनिए, है। मेरी बात मैंने सुनिए, उस आप वक्त चुप खत्म नहीं किया जब आपने आकर भाषण अब दिया। आप रिकॉर्डिंग तो करा लें, आपके जो जवाब- गाली देनी है मुझे फिरौन कहना है, शैतान कहना, जो ये कहना है। आपका काम है गाली हाँ, देना, क्या ये लिखा है, जो आपका कुछ काम करना है, मैं गाली नहीं दूंगा। मैंने आपको गाली के लिए रोका है। जब यहाँ पर आप पोस्टरें लगाते थे ना खवातीन की, मैंने कहा तुम्हें जेब नहीं देता आमिर। हाँ हाँ ठीक है। हाँ तो फिर मुझे उकसाओगे? मुझे कह लो जो कुछ आपके मुंह में आता है। जब आपने तलब के साथ गाली कह लो, राज्य के कह लो। प्लीज अस्कानी भाई बाद में इसकी माफी ना मांगना प्लीज, आके हमसे माफी ना मांगना। जब आपने खड़े रहना। प्लीज जाने दे, जाने दे। तब एक मिनट आमिर भाई, जब आपने शैतान तलब सवार है इनके दिमाग पर, इनको कहने दो जो कुछ ये कहना चाहते नहीं देखें बहुत लड़ाई हो गई है, बस करें, बस कोई और बात कर रहे हैं, देखें मतलब उनका दिमाग ही नहीं काम कर रहा कि आपको एक बार मुफ्ती साहब ने मिन्नत की, मैं ऊपर आके मैंने माजरत की कि पीर साहब आप जीते मैं हारा। नहीं मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरी बेइज्जती हो गई है, तुम नीचे उतर गए हो, मेरी बेइज्जती हो गई है। हद होती है। ये ना नीचे जो कमेंट आ रहे हैं दोस्तों साहिबान, ये कादियानी लोग हैं, ये कादियानी हैं जो कभी आसकानी साहब की हमायत कर रहे हैं और कभी आमिर नज़ीर साहब की। ये सब कादियानी, टोटली कादियानी। और कादियानियों का यही तरीका है, वारदात है। वो कहते हैं कि देखो मिर्जे कादियानी की जात और किरदार के ऊपर बात ना करो, तुम आपस में उलझा करो। कभी वाकई देवबंदी से उलझे, कभी देवबंदी बरेलवी से उलझे, और कभी बरेलवी शिया से उलझे, तो ये आपस में मसलक के आपस में लगे रहें, या आपस में दो भाई उलझे तो बस फायदा ही फायदा है इनको। तो ये असल में इनका तरीका वारदात होता है। तो आज की गुफ्तगू से कम एक जो मुस्बत चीज़ मिली है वो ये कि आप हजरात ने देख लिया कि किस तरीके से कादियानी, जब हमारे दो मुसलमान भाई आपस में कोई लड़ रहे होते हैं या कोई उलझन हो जाती है, कोई गलत फहमी हो जाती है, तो ये किस तरीके से ये लुडियाँ और बंगेड़े डालती है। और आपने ये भी देखा होगा कि दो दफ़ा मैंने बीच में जगह बनाई है और मिर्जे कादियानी की करतूत के ऊपर गुफ्तगू की है, और कादियानियों की चीखों पुकार शुरू हो गई है, चीखें शुरू हो गई हैं कादियानियों के। और नीचे कमेंट भी, अभी रिकॉर्डिंग चल रही है, हर चीज़ की रिकॉर्डिंग चल रही है, आप वो मैसेज भी देख सकते हैं। तो ये है, तो ये मैं ये अर्ज करता हूँ, यही बात बार बार अर्ज की है कि कादियानियों को सिर्फ मिर्जे कादियानी की जात और किरदार पर रखे बस, और आपस च कदी असीं लड़ना ही नहीं है ही नहीं। सानू नहीं किसी फिरके नाल कोई लैनी देनी नहीं, ते अपने भरा मुसलमान भरा नाल कोई लैनी देनी ही नहीं। यकीन माने ये आमिर नज़ीर भाई यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़े, मैं नाम नहीं लेता, बड़े बड़े मुजाहिदीन से मेरे बड़े बड़े इख्तलाफात और साल हा साल चले, लेकिन यकीन जाने आज हम वो एक में एक हैं। आज एक है, और ये हमारे अंदर तो ये मामले हैं। हम ज्यादा देर नहीं, हमारी नाराजगियां ज्यादा देर नहीं चलती।
अभी आसकानी साहब को गलतफहमी हो गई या आमिर साहब को हो गई या जो भी हो गया, कोई इनके मबैन हुआ है मामला, तो ये ज्यादा देर नहीं चलना, ये ज्यादा से ज्यादा क्या 2-4 दिन चलेगा, बाद में फिर इक्का मिक्का हो जाना। हाँ जी। हम अमर भाई पीर साहब को ऊपर ले, पीर साहब को ऊपर ले, उनको बात करने दे। यार अमर साहब मेरी बात सुने, पता होना क्या है, यहाँ आके रिकॉर्डिंग करानी है ना, यहाँ 65 बंदे बैठे हुए हैं, जब ये तशरीफ ले जाएंगे ना अपनी ब्रॉड लगा के, वहाँ गालियां देंगे तो वहाँ भी ये 65 बंदे इनके पास पहुंच जाएंगे। नहीं तो कहें मैंने उनको नहीं उतारा, मैंने उनको उठाया। प्लीज छोड़ दे, अब गर्म माहौल है, अब बात नहीं हो। मैंने उनको ऊपर उठाया था, मैंने उनको नहीं उतारा। मैं जिम्मेदारी लेता हूँ इस बात की, क्योंकि वो बात एक गलतफहमी की वजह से पीर साहब यहाँ तक माइंड उनका चला गया। अमर साल इस बात को छोड़ दे अल्लाह के लिए। सब फिर जिस बंदे का माइंड कंट्रोल में ना हो, ज्यादा देर नहीं चलना, क्या हो गया, या बच्चे हो तुझे की करते हो? नहीं वैसे मैंने तो इसीलिए उनको ऊपर लिया कि भाई यहाँ जो गाली देनी है दे ले। अमीर ना थोड़ा सा गुस्से का माहौल बना हुआ है, ये बस ज्यादा 1 हफ्ता तक फिर सेट हो जाना। भाई है हमारे पीर साहब, भाई हैं, हम कदर करते हैं, इज्जत करते हैं, मैं दिलो जान से इज्जत करता हूँ पीर साहब की, कोई ऐसा मसला नहीं। पीर साहब आप बात रहने दें, बाद में बात करेंगे, जरा ठंडा माहौल होगा। थैंक यू। इनकी आदत है कि ये हफ्ता महीना एक ना बनवाए वीडियो मिर्जाइयों के लिए। कितनी वीडियो इन्होंने बनवाई है यहाँ पर, इनको देर हो रही है कि 6 महीने से पिछले से इन्होंने कोई वीडियो नहीं बनवाई है। मिर्जाइयों को तमाशा लगा के नहीं दिखाया, अपने मुसलमानों के साथ गालम गलोच पर ठीक है, हमें भी गालियां तो मुसलमान देते हैं, लेकिन हमने कभी जाके उनके साथ मुठभेड़ की है? ठीक है, गालियां देते अपनी ब्राड पे जाके, कोई जो मर्जी कहता रहे, लेकिन इनकी एक रूटीन है, इनका एक मिजाज है, उन्होंने अपने मिजाज के मुताबिक बिहेव करना ही करना, उनको कर लेने दें। मैंने तो उठाया इसलिए था कि यहाँ जो करना है यहाँ कर लें, वरना वो अपनी ब्राड लगा के जाके करेंगे, फिर आप सारे वहां जाएंगे। मुझे पता है आप यहाँ कह तो रहे हैं ना, लेकिन आप सारे वहां जाकर सुनेंगे, यहाँ आप नहीं सुनना चाहते। तो मेरा तो कोई इतना, मैंने तो उनको उठाया कि यहाँ वो जो कहते हैं सुन लें। मैं जब वो जो मेरे बारे में कहेंगे मैं सुनने के लिए तैयार हूं, तो आपको क्या हो रहा है? नहीं देखे, इतना टाइम लग गया है इस बात पर आपस में, मतलब है कि मैं ठीक वो ठीक, इस बात पर ये कोई और बात हो सकती थी जो तो कोई मुसलमान हमारा फैसला नहीं कर सकता। अगर मेरा और आपका इख्तलाफ हो जाए, मुफ्ती साहब बैठे हैं, इमरान बैठा है, ये अमर भाई बैठे, ये कह दें भाई नहीं भाई आप दोनों में से मुफ्ती साहब की गलती है, मुफ्ती साहब चुप कर जाएं, या वो कह दें कि यार अमर तुम्हारी गलती है, मैं चुप कर जाऊं। नहीं, ये तो तुम्हारा चमचा है जो कह रहा है, ये तुम्हारे सारे चमचे हैं जो तुम्हारे बारे में कह रहे हैं। भाई मैं अपना फैसला अगर खुद करूंगा या मेरे जज मिर्जाई हैं, तो फिर शर्म से डूब मरने का मकाम है राजा साहब, कि मेरा जज या मैं खुद हूं या मेरे हक में फैसला मेरे मिर्जाई करते हैं। भाई मुसलमानों में से किसी से फैसला करवा लें। मैंने यही कहा कि आप गलत कर रहे थे, मैंने आपको नहीं उतारा, नहीं टोका, मैं खुद नीचे उतर गया, बुरा किया मैंने, मेरी बेइज्जती कर दी है, नीचे उतर गए, मेरी बेइज्जती कर दी है, फिर आके फिर हम बोले भी नहीं। मैं खुश, वलीद को मैंने तो नहीं कहा नीचे उतरो, अल्लाह वादा शरीक की कसम है, मैंने वलीद को ना कहा है। अमर भाई बात ये हुई है, आपने काफी जोर से कहा है जी कि चुप कर जाओ, चुप कर जाओ। हाँ। जब नहीं चुकी आपने कहा जी चलो मैं चला जाता हूँ। हाँ जी, क्या गलत किया? इतनी सी बात है, अगर पीर साहब को उतार देते फिर तो वो कह सकते थे मुझे उतार दिया तुम लोगों ने और वलीम को ऊपर ही रखा। हाँ, ये बेइज्जती होती है। हाँ, मगर आपने कहा यार मेरी नहीं सुननी। अगर कई बार ऐसी बात होती है जब मच्छी मंडी बनी हो तो फिर उस वक्त कोई बंदा नया आ जाए तो उसकी भी सुन लेनी चाहिए कि थोड़ा सा ऑर्डर आ जाए, बात में ब्रॉड पर ऑर्डर आ जाए, ऑर्डरली बात हो। असल में तो ये होता है, पर पीर साहब जी हमारे भाई हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, मैं तो दिलो जान से पीर साहब नहीं, मतलब क्या गलती की? अगर मैं नीचे उतर गया हूँ, अच्छे आलम दीन है, वो बड़ा नॉलेज है उनके पास, नहीं अच्छे हैं, लेकिन मतलब जज्बात पे भी कंट्रोल रखना चाहिए ना, जज्बात को बेकाबू नहीं होने देना चाहिए। इंसान को अल्लाह ताला ने अगर ईमान दिया है ना, तो ईमान का तकाजा यह है कि हम अपने जज्बात को शैतान के हवाले ना करें, अपने कंट्रोल में रखें। जब सारे भाई कह रहे हैं कि हाँ आपकी ज्यादती है, हाँ आपकी गलती है, आप कहें नहीं तुम सारे तो उसके चमचे हो, तुम सारे तो झूठे हो, चोर हो, गालीबाज हो, तो जो कहना है फिर कह लें। इसमें क्या गलत किया राजा साहब? मैंने उनको कुछ नहीं कहा, मिन्नत की, चुप कर जे, नहीं चुप किए। हम कोई गाली तो नहीं दे रहे, हम बात कर रहे हैं। नहीं गल है वे कि असी कादियानियत दा मौजू छड़ दिता है ना, वो ते पहले चंद दिन पे कोई है आपस च लगे रहन, बस घंटे न गुफ्तगू करते रहन,
ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮੌਜੂ ਤੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਨਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵਾ ਮੌਜੂ ਥੋੜਾ ਚੇਂਜ ਕਰੋ, ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਆਪਸੀ ਮਾਮਲਾਤ ਚ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਦੇ ਤਾਜ਼ੇ ਕੋਈ 2-4 ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਦਿਓ ਬਾਈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ। ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਪੋਸਟਰ ਇੱਕ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਿਜ਼ੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ 100% ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਹ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਆਪਸ ਕਿਸੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਵਲੀਦ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰ ਦੇ ਤੇ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਨਾ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਮਾਰਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਛੱਕੇ ਚੁੱਕੇ ਉਹਨਾਂ ਮਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਅਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਥੱਲਿਓਂ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਉੱਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਬਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਜਾਜ਼ੀ ਬੇਟੇ ਦੀ, ਤੇ ਇਜਾਜ਼ੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੱਲ ਅੱਗੂ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੇਸ਼ਵਾ ਦੀ, ਜੰਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਤੂੰ ਤਕਰਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ? ਹਾਂ, ਗਾਲਮ ਗਲੋਚਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੋ ਕਿ ਵੀ ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਹੀ ਵਲੀਦ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੜਿਆ ਜੇ ਨਾ, ਗਾਲਾਂ ਨਾ ਕੱਢਿਆ ਜੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪੁੱਛ ਦਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਕੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਜੋ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਬਣ ਗਏ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਬਰ ਖਾਨ ਦੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਲੜਨ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਕੀਤੀ। ਕਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ? नहीं असल पता क्या होया, देखो मैं उस आया थे तो गल शुरू असल में इत्थों हुई है, शायद मेरी इसमें गलती है। मैं ओ अलीम कहा कि मैं वीडियो बनाऊंगा, मैं क्या अलीम साहब वीडियो नूं तुसी सवाल नहीं कर सकते, तुसी जिहड़ी गल करनी है वो इत्थे मतलब एक सामने बैठ के करो ताकि तुहाडे ते सवाल भी हो सके। मैं थोड़ा खाना खा रहा हूँ, 10 मिनट के बाद बात करूंगा, ठीक है इंशाल्लाह। बुज़दिली का सबूत मत दो, उतारो नहीं। ठीक है, नहीं पीर साहब, नहीं इन्होंने नहीं उतारा। पीर साहब मैं आपको बता देता हूँ, देखें मैं इसमें बिल्कुल शर्मिंदा नहीं हूँ इस बात में, आप हमारे बड़े हैं, आप जितना नॉलेज, आपके नॉलेज का बहुत रिस्पेक्ट है, आपका दिली इज्जत करता हूँ मैं। उस वक्त इसलिए कि अब ये गुफ्तगू ख़त्म नहीं होने जा रही थी कहीं भी, वो काम मैंने किया था, इन्होंने नहीं किया। वलीद ऊपर आ तू दस कि गल की हुई उत्थे, मैं चलो ठीक है उससे बिजी सी, इन्हां दे दरमियान गल चल रही सी, वलीद गल करवा रहा सी ते इन्हां ने आके विच ते लड़ाई उहदे नाल शुरू करती। चलो मैं 1-2 मिनट सुनिया, हुण ओह गल ते किसी पासे लगदी नहीं पई, या तो फिर उहनूं थल्ले ला देवो। अगर अलीम नूं तुसीं समझदे हो कि तुसीं उहदे कोल माफ़ी मंगाणी है ते माफ़ी मंगाण वास्ते तुहाडे कोल कोई रस्सा है, कोई हथकड़ी है, कोई कड़िक लाने वाली है वे, तो उन्होंने थले बहा के ते उन्होंने कहो माफ़ी मांग मेरे को। अगर कोई तुहाडे कोल नहीं है तरीका, तुसीं छड़ा रौला पा रहे हो 2-3 मिनट तू मैं सुन रहा, एक दूजे नूं तुसीं बुरा भला जो भी लफ्ज़ां नाल कह रहे हो, तो मैं आके मिन्नत की भी चुप कर जाओ, शोर ना करो। जे तुसां मेरी नहीं मन्नी तो मैं थले उतर जाने वाला किहड़ा जुर्म कर दिता है? मेरी नज़र तो तुसीं गलत कर रहे। चलो मैं हो सकता मेरा मौकफ गलत होवे, लेकिन मेरी एक राय मैं वो तुहानूं दे दी कि मेरी नज़र तुसीं ज़्यादती कर रहे सी। अगर वो गलत है या सही है, ये तुहाडी बेइज्जती काहदे नाल हो गई है? बेइज्जती होगी, मेरी बेइज्जती होगी। दस वलीद भाई की गल हो रही सी इन्हां दे दरमियान? वलीद साहब नीचे चले गए फिर। वलीद भाई ऊपर आकर बताएंगे भाई क्या बात हो रही थी अकबर खान साहब की और वो अलीम की बीच में? पीर अस्कानी भाई कैसे आए, इनको क्या जरूरत पेश आई है बीच में आने, ये समझाएं हमें बात। आमिर भाई 5 मिनट है मेरे पास, बस सुन, क्योंकि मैंने सारी बात सुन ली है आप लोगों की। ठीक है मैं बैठा फॉर यू पे सुन रहा था सारा कुछ। ओके ठीक है, बात पूरी सुना देता हूँ आपको। बात इतनी है कि बात शुरू इस तरह हुई थी कि मैंने अलीम साहब से पूछा, मैंने कहा आप आज वीडियोस लगा रहे हैं वो मुबशर कानू की, तो उसकी क्या वजह पेश आ गई है आपको वो ईमान अफरोज लगाने की? उन्होंने अपनी एक वजह बताई कि जी मैंने इसलिए लगाया। उसमें अकबर खान साहब एंटर हुए और उन्होंने कहा कि जी असल बात ये है कि ये इस तरह के वाकयात बयान करके अपना चंदा बढ़ाना चाहते हैं, लोगों को कहना चाहते हैं कि चंदा दें हमें, और इस तरह के झूठे वाकयात बयान करके।
اس پر ان کی دونوں کی میں نے ماڈریٹ کروا کے 1 to 1 بات کروائی. میں نے کہا بھائی 1 to 1 کر کے بات کر لیں. علیم صاحب نے اپنی بات کی, اکبر خان صاحب اپنی بات کر رہے تھے, 1 to 1 ہی گفتگو چل رہی ہے. علیم صاحب سے انہوں نے ایک حوالہ مانگا جمبا صاحب کے بارے میں کہ انہوں نے کوئی پیش گوئی کی تھی کہ لڑکا ہوگا, لڑکی ہو گئی, جو بھی ہوا وہ ان کے آپس کا معاملہ ہے. اکبر خان صاحب نے کہا جی مجھے اس کا حوالہ دے دیں. علیم صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے, میں آپ کو حوالہ دینے کا پابند ہوں, میں اس کی ایک ویڈیو بنا دوں گا, آپ کو اس کے اوپر اعتراض ہوگا, میں ادھر آ جاؤں گا, آپ میرے اس کے اوپر اعتراض کیجئے گا, جو بھی آپ نے کرنا ہوگا آپ کیجئے گا, میں اس کا پابند ہوں, ایک ایک لفظ کا میں ذمہ دار ہوں آپ کو حوالہ دینے کا. اتنی گفتگو ان کی چل رہی تھی. اس کے اندر اکبر خان صاحب اور میری بات پھر اس کے بعد شروع ہوئی, کیونکہ میں ماڈریٹ کروا رہا تھا. میں نے اکبر خان صاحب کو کہا, میں نے کہا یار تھوڑا سا ٹائم دے دیں, جو بھی گفتگو آپ کی ہو رہی ہے اس کے اندر وہ حوالہ دینے کے پابند ہیں, وہ نہیں وہ ویڈیو بنائیں گے یا وہ حوالے آپ کو نہیں دیں گے, ادھر بٹھا کے انہیں میں کہہ دوں گا یا باقی سب کہہ دیں گے کہ بھائی آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اتنی بات کے اندر ابھی یہ بات میں کر ہی رہا تھا کہ راجہ صاحب آئے. راجہ صاحب نے تھوڑی سی بات کرنے کی کوشش کی, تو میں نے راجہ صاحب کو کہا راجہ صاحب آپ کو پورا پچھلی بات کا نہیں پتا, آپ تھوڑی دیر ویٹ کر لیں. راجہ صاحب نے خیر مائک کو میوٹ کر لیا. اتنی بات میں پیر صاحب نے کہا کہ نہیں میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں. حالانکہ مجھے اختلاف تھا کہ پیر صاحب نے مائک کھولا ہے کیونکہ میں ماڈریٹ کر رہا تھا, لیکن پیر صاحب نے اپنی گفتگو کو جاری رکھا. اس پروگرام میں شریک مہمان اور کال کرنے والوں کی آراء، موقف اور خیالات ان کے اپنے ذاتی ہیں اور ضروری نہیں کہ وہ ہمارے چینل اور ٹیم کے خیالات، آراء اور موقف کی عکاسی کریں. ہم کسی دوسرے فرد کی آراء اور موقف کے ذمہ دار نہیں.